In the previous class, we have seen that we have two types of the costing system. One is integral system and another one is a non-integrated accounts. Now, what was the basic meaning? हमने इसका ये भी पढ़ा था कि basic meaning was कि in the integral system we prepare all the accounts are prepared together. फाइनेंशियल और द जो भी कॉस्ट अकाउंट्स होंगे दोनों को हम एक साथ बना के एक बुक्स में रखते हैं. Whereas in the non-integrated, both the financial accounts and the cost accounts are kept separately. So in this chapter, that is cost control accounts, we are going to study about a non-integral, that is a non-integrated accounts के बारे में पढ़ेंगे. So where the two separate sets of the books are maintained to record the cost and financial data, there you will say that this is a non-integral accounting system. Now class, under this method, we have a 4 principal ledgers which we need to maintain. कितने ledgers बनाने हैं? Total 4 principal ledgers need to be maintained. So the cost, who will be responsible for maintenance of this cost records? Obviously the cost accountant will be responsible for this case. So उनका काम होगा that he should ensure that कि जो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है और जो भी कॉस्ट अकाउंट्स है वो इजीली दोनों लिंक्ड अप हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंस वी आर मेंटेनिंग अ 2 सेट्स ऑफ द बुक्स, सो जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा और जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट होगा दैट वुड बी द डिफरेंट, बट हम इसको रिकंसाइल कर सकते हैं. वी हैव सीन इन द सेमेस्टर 5 हाउ टू डू द रिकंसिलिएशन. नाउ then apart from this we saw that in the cost accounts there is no personal ledgers which are being maintained. Because this is that is why it is also known as interlocking system, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप सिर्फ इम्पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो. विच आर दोस टू impersonal accounts which you are maintaining? Real account and nominal account, but more of the emphasis is given to which account? Nominal, because we are more concerned about the cost analysis. हमें हमारे खर्चे कितने हो रहे वो ज्यादा से जानना है. और impersonal account में real account include हो रहा है, but in the real account you are only and only preparing the stores account. Material related जितने भी हमारे accounts है, that only the store ledger you are preparing. For the individual components of, you can say, the raw material which are being consumed, या तो material के components के लिए you are preparing the store ledger. इसके लिए यहाँ पर they are saying that impersonal accounts are maintained. We did this in the previous class. I'm just, we are revising it so that at least जो लोग नहीं थे in the previous lecture, उनको भी एक बार revision मिल जाए. And I told you that here in this chapter, this cost control accounts are divided into the 2 types. ठीक है, एक है मेन लेजर, सेकेंड दूसरा वन था सब्सिडरी लेजर. सो योर कॉस्ट लेजर क्या होता है? द कॉस्ट लेजर इज अ लेजर वेयर whose accounts record the transactions which are been included of the cost. जो भी हमारे कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस है वहां पर हम कहाँ पर लिखते हैं? कॉस्ट लेजर्स में लिखते हैं. सो योर कॉस्ट लेजर इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, मेन एंड द सब्सिडरी लेजर. तो जो हमारे मेन लेजर्स होंगे ना, they are known as your cost ledgers. The main ledgers are known as your cost ledger and उसको हम principal ledger भी बोलते हैं. बाकी जो होंगे वो हमारे subsidiary ledgers होंगे. Subsidiary ledgers में कौन कौन सा आ जाएगा? Finished goods आ जाएगा, WIP आ जाएगा, store ledger आ जाएगा. All this will be coming in the other subsidiary ledgers. समझा? So इसके लिए what they say that control account is open over here and that control account, the main जो भी हमारा जो मेन लेजर होगा उसको ही हम क्या कहेंगे? कॉस्ट लेजर कहेंगे उसको ही. ठीक है, अब हम ये कॉस्ट लेजर क्यों बनाते हैं? बिकॉज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑल्सो फॉलोज द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, कि अगर एक को डेबिट दे रहे तो ऑब्वियसली दैट शुड बी इक्वल टू अ क्रेडिट, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. So just for making all our cost ledgers, self-balancing, we are preparing this control accounts. देखो, it is very difficult to prepare the individual accounts. यहाँ पर हम एक individual account नहीं बना सकते. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम we take a total. हम सारे ledger account को एक ही उसका account बनाते हैं. इसके लिए हम उसको cost ledgers कहते हैं. Okay? So जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है बुक कीपिंग का, इट इज बीन फॉलोड इन आवर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग.
ठीक है, तो पहले बनेगा क्या बनेगा, पहले जर्नल बनेगा. फर्स्ट ऑल योर वाउचर्स आर एंटर्ड इन द जर्नल. जर्नल से व्हाट यू विल डू, कॉस्ट लेजर्स बनेंगे. और देन दिस कॉस्ट लेजर विल बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन लेजर्स एंड द सब्सिडरी लेजर्स. समझ में आया? यहाँ पर 3, बट अभी तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो 4 बोला ना. ये 3 प्लस एक प्रिंसिपल लेजर, जो मैंने आपको बोला कि वो जो सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट हम जो बनाएंगे. ठीक है, तो जो पर्सनल अकाउंट्स और जो भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी वो लिंक करेगा, दैट फॉर दैट वी विल प्रिपेयर 1 एक्स्ट्रा लेजर. तो ये 3 प्लस वो 1, सो मिला के कितने हो जाएंगे, 4 मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर्स which will be maintained by whom, which will be maintained by a costing department under non-integrated system. देखो, all of your financial accounts जो भी हमें adjust करना है, it will be, this adjustments will be done by general ledger adjustment account. ठीक है, so again our class, if someone asks you okay, what all are the control accounts, so what will be your answer? Your control accounts are the total of the summary accounts. और वो आप कहां पर मेंटेन करते हो, दैट इज मेंटेन इन द सब्सिडरी लेजर. So they are maintained for your subsidiary ledgers and where in the cost ledger under your non-integrated system. And when they are prepared on a periodic basis. जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे आपको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हैं. So again I am repeating once, those who want to write it down they can just write it down. Control accounts are the total at the summary accounts which are maintained for subsidiary ledgers in the cost ledger under non-integrated system, and they are prepared on the basis of periodic total of the transactions in the respective subsidiary ledgers. And the only reason for maintaining is to complete the double entry. चलो, अब हम हमारे जितने भी कंट्रोल अकाउंट्स है ना, मेन लेजर्स एंड द सब्सिडरी लेजर्स जितने भी हमारे हैं, हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये मेन लेजर सब्सिडरी लेजर्स. तो आज पहले वो लेजर्स हम क्यों बनाते हैं वो सीखेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी. नाउ द वेरी फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट वन इज योर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अब उसके बहुत सारे नाम है, I mean we have 3 names of it, so it's better remember this. First one is general ledger adjustment account, also known as cost ledger control account or financial ledger adjustment account, or you can say finance ledger control account. Now अब ये वाला अकाउंट क्यों बनता है? सो जो भी आपके आइटम्स होंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस के विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर फाइनेंस बुक्स, ठीक है, वो सारे आप कहां पर पोस्ट करोगे, दैट यू विल बी पोस्टिंग इन दिस अकाउंट. सो ऑल द आइटम्स ऑफ एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर फाइनेंशियल बुक्स आर बीन पोस्टेड इन दिस अकाउंट. सो व्हाट डज दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स? So this account represents your personal account. ठीक है, क्योंकि हम कॉस्टिंग के बुक में तो पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, बट हमें हमारा सिंस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है तो हम उसको ओमिट भी नहीं कर सकते. हम डायरेक्टली सी नो एंट्रीज कैन बी डायरेक्टली पोस्टेड फ्रॉम द फाइनेंस बुक टू द कॉस्ट बुक. तो ये जितनी भी सारी एंट्रीज है ना, इट शुड बी फर्स्ट पोस्टेड थ्रू दिस अकाउंट. और फिर बैलेंस होगा यहाँ पर, देयर विल बी अ बैलेंस व्हिच विल रिप्रेजेंट ऑल द बैलेंसेस ऑफ योर इम्पर्सनल अकाउंट्स. तो हम डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते फाइनेंस बुक से कॉस्ट बुक में सारी एंट्रीज को. हम कौन से अकाउंट के थ्रू करते हैं? हम ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट. इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कहते हैं. Here you record the store ledger control account, wages control account, factory overheads control account, administrative overheads account, selling and distribution account, और लास्ट में हम इसको बैलेंस करते हैं.
ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर कुछ आया तो डायरेक्टली इट विल गो इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो आई एम जस्ट इंट्रोडक्सिंग द लेजर्स विथ यू ऑल, के कौन कौन से लेजर्स है. तो हमने सबसे पहला मेन लेजर देख लिया. नाउ द सेकेंड लेजर विच वी आर गोइंग टू सी इज अ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. Second one is store ledger control account. Now, why this store ledger control account is prepared? Class, remember one thing. आप यहाँ पर जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाओगे उसके आगे आपको द वर्ड लेजर कंट्रोल इज एडेड. ठीक है, आप क्या, आपका चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स. जस्ट आपको इसके वजह से आपके आप जितने भी लेजर्स बनाओगे यहाँ पर आप द वर्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी एडेड इन ईच एंड एवरी अकाउंट. नाउ स्टोर लेजर, स्टोर्स का मतलब क्या होता है? मटीरियल. तो स्टोर लेजर अकाउंट किससे डील करता है? मटीरियल ट्रांजैक्शन से डील करता है. Okay, all the transactions which are related to the receipts and the issues of the raw material will be recorded over here. Receipts मतलब क्या? गुड्स का आना. ठीक है, रिसिप्ट्स मींस गुड्स का आना. इश्यू का मतलब क्या? हम गुड्स भेज रहे. ठीक है, गुड्स आर गोइंग आउट. तो अगर जो भी बैलेंसेस बचेगा फिर इसमें विल शो द टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर इन योर स्टोर लेजर्स. ठीक है, सो इट इज डेबिटेड. अगर आपने परचेज किया है मटेरियल तो आप, और या तो आपको मटेरियल रिटर्न हुआ है फ्रॉम द स्टोर्स, so since that goods is coming in, that is why it is debited, because store ledger control account is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. So if you are issuing the material, it is going out, that is why it will be credited. Now very important note कि अगर आपने कोई मटेरियल स्पेसिफिक जॉब के लिए परचेज किया है, ठीक है, तो हम इसको ये वाले अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते. भले ही हमने परचेज किया है मटेरियल, but that material is purchased for some specific job, so that is why it will be recorded, it will be debited in your WIP account, that is work in progress control account. ये वाली नोट एकदम इंपॉर्टेंट है, एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस, हाँ, कि whenever the material which is purchased for a specific job, it is generally debited to WIP control account. Now the next one is wage control account. So wages control account, wages control account किससे डील करता है? नाम से ही पता चल जाएगा, it deals with the wages paid. अब देखो, अब remember one thing very 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 important. The amount of the direct wages which will be paid will be directly transferred to the WIP account. जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप करोगे ना, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल के रिलेटेड है, वो चाहे डायरेक्ट लेबर के रिलेटेड है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे? WIP अकाउंट में डेबिट देना है उसको. Where it will go? WIP. What I'm talking about, all the direct expenses. जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ना, जो भी इनडायरेक्ट, योर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस and then indirect expenses, that also will be recorded in the accordingly. Indirect material है तो फैक्ट्री में जाएगा. इनडायरेक्ट किसके रिलेटेड? अगर आपने इनडायरेक्ट कोई वेजेस दिया है तो sometimes it goes in the office, sometimes it goes in the selling and distribution overheads control as well. So remember one thing, all your direct expenses, जितने भी डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस will go where? In the WIP control account. समझ में आया? एंड जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट आप क्लोज कैसे करोगे? बाय ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट इन द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे किया था कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यू कैन से द फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि जो भी बैलेंस बच जाएगा, ऑलमोस्ट द बैलेंस कम्स ऑन द डेबिट साइड ओनली. 99% द बैलेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड. तो जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू योर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. दिस इज व्हाट. ठीक है, और ग्रॉस वेजेस में अगर डायरेक्ट वेजेस होगा तो वो WIP अकाउंट में जाएगा. इनडायरेक्ट होगा तो कौन किसके लिए? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट वेजेस दिया है आपने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का दिया है, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू सी एंड यू हैव टू पोस्ट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट.
समझ में आ रहा है क्लास? एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट इन दिस 3 लेजर कंट्रोल अकाउंट्स? Just first acknowledge in the chat box, then we will move ahead. Everyone just first acknowledge in the chat box, then we will move ahead. एंड मैं देखो लाइन वाइज जा रही हूँ. हम कैसे लाइन वाइज जा रहे हैं? अगर आप कॉस्ट को रिमाइंड करो, कॉस्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, तो मैंने आपको पहले स्टोर लेजर बताया. फिर हम लिखते हैं वेजेस, तो मैंने आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट बताया. नाउ थर्ड वन, आफ्टर इट वी हैव अ ओवरहेड्स. प्राइम कॉस्ट के बाद क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स. Factory overheads are also known as our production overheads. So this account deals with all your factory overhead expenses. जितने भी expenses है आप debit करोगे with indirect expenses. जो भी indirect material है, indirect wages है, या तो indirect expenses है, और credit होगा by the amount of overheads which are being absorbed and transferred, and later on this is transferred in the WIP account. फैक्ट्री से देखो, एक बार आपने फैक्ट्री में आपका ये हो गया, प्रोडक्ट आ गया, फिर फैक्ट्री से आप उसके ऊपर क्या करने वाले हो? काम चालू करोगे. सो फ्रॉम फैक्ट्री, दैट इज फ्रॉम द प्रोडक्शन, वेयर इट विल गो टू द WIP. दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट दिस विल बी ट्रांसफर टू द WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है. अब कभी कभी आपको यहाँ पर बैलेंस भी आएगा. देयर विल बी अ बैलेंस इन दिस अकाउंट. तो अगर आपको कुछ बैलेंस आता है तो व्हाट दिस बैलेंस विल रिप्रेजेंट? अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स. अगर आपको बैलेंस क्रेडिट साइड आया, again I am repeating, if you got the balancing figure on a credit side, it means your overheads are under absorbed. Your overheads are under absorbed. And if you are getting the balancing figure on a debit side, it means your overheads are over absorbed. ठीक है. Under absorbed and over absorbed. Again, I am repeating, अगर factory overheads control account में if you are getting a balancing figure on a credit side, it represents your under absorption of the overheads. And if you are getting a balance on the debit side, it represents the over absorption of the overheads. और under absorption और the overheads, ये दोनों भी आपका अंडर एब्जॉर्ब हुआ या तो ओवर एब्जॉर्ब हुआ, वो लास्ट में किधर ट्रांसफर हो जाता है? इट गेट्स ट्रांसफर इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज इन द कॉस्टिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा अकाउंट बनाते हो? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. फिर हमारा फैक्ट्री के बाद, एज आई टोल्ड यू कि अभी इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगा? द वर्क विल गेट स्टार्ट. तो आफ्टर दिस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, आप जो अकाउंट बनाओगे दैट विल बी योर WIP कंट्रोल अकाउंट. दैट इज WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. अब WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नाउ? सो दिस अकाउंट विल रिप्रेजेंट्स द टोटल WIP के कितना काम अभी भी चल रहा है, कितना अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है. सो देयर विल बी अ डेबिट बैलेंस ऑफ द वर्क विच विल बी गिवन. और मैंने क्या बताया आपको कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो कहां पर रिकॉर्ड होता है? WIP. सो ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल योर डायरेक्ट खर्चा WIP अकाउंट में जाता है. और WIP देखो, एक बार ये मुझे ये बताओ, एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया मींस व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड. करेक्ट. दिस रिप्रेजेंट्स दैट योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड. सो वंस योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड क्लास, वो कहां पर जाएगा? ऑब्वियसली वो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड विद द फिनिश गुड्स. आपको ये अकाउंट को किससे क्रेडिट करना है? विद द वैल्यू ऑफ अ फिनिश गुड्स. आप खुद ही सोचो ना, फैक्ट्री से मेरा गुड्स आया, इट केम इन द, देन द प्रोसेस हैपेंड ऑन इट. सो WIP, फ्रॉम WIP ऑब्वियसली अभी क्या बनने वाला है? वो फिनिश गुड्स बनेगा. सो नाउ दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय योर फिनिश गुड्स. ऐसे तुम लोग याद करोगे. और WIP अकाउंट में आप सारे डायरेक्ट, दैट इज अ प्राइम कॉस्ट, जितने भी आपके होंगे वो रिकॉर्ड करोगे. ठीक है. अगर आपका कोई बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है तो फिर क्लोजिंग बैलेंस भी होगा. तो इफ देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? कि स्टिल वो गुड्स अभी भी उस पे काम चल रहा है, वो अभी भी अनफिनिश्ड गुड्स है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो उसके ऊपर. दे आर स्टिल अनफिनिश्ड गुड्स, and this unfinished goods will be carried forward, that is brought down and carried down.
ठीक है। नाउ आफ्टर WIP अकाउंट मैंने क्या बोला, ये कंप्लीट होके क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएंगे. So then comes to a finished goods account. So what this accounts represent? So finished goods ledger control account represents the total value of a finished goods in the stock. कि हमारे कितने finished goods बने हैं. So it is debited with the opening stock of a finished goods, or you can say the value of a finished goods which is transferred from. कहाँ से आएगा इसका opening? Obviously WIP account से. See, एक account का closing will become next account के लिए opening. So अगर WIP अकाउंट से आ रहा है, तो अगर क्रेडिट साइड से आप आ रहा है, तो फिनिश गुड्स के कौन से साइड पर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पर. डोंट वरी, जब ये हम लेजर्स बनाएंगे ना क्वेश्चंस में, तो अब आपको वो और क्लियर होते जाएगा. समझ में आया. सो जो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से जो भी आपका अमाउंट विल गेट ट्रांसफर, दैट विल बी डेबिटेड इन द फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो अब इसमें क्रेडिट क्या होगा. तो अब देखो, जो फिनिश गुड्स आपके बन गए, नाउ दे आर रेडी फॉर द सेल पर्पस. आपका एक बार फिनिश गुड्स बन गया, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स के नाउ इट इज रेडी फॉर योर सेल पर्पस. सो इसको आप कहां पर क्रेडिट दोगे, वेयर द क्रेडिट विल बी गिवन. सो इसका क्रेडिट विल बी गिवन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में यू रिमेंबर द कॉस्ट शीट. आप इसके लिए कॉस्ट शीट याद करोगे तो आपको हेड्स भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमने अकाउंट्स भी लिए इसके. सो फिनिश गुड्स विल गेट, इसका जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो कहां पर ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में. स्टिल अगर आपका फिनिश गुड्स में कुछ कैरिड फॉरवर्ड, दैट इज बैलेंसिंग, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स के इट इज एन अनसोल्ड स्टॉक, अभी भी ये सेल होना बाकी है. So this will be carried forward then. So this balance, इसमें balance आया तो it will indicate that finished goods in hand, that is unsold stock, or you can say the finished goods in hand. तो अब तक let's see हमने कौन कौन से accounts देखे. The first one which we saw is general ledger adjustment account. Second one we saw is store ledgers control account. Third one we saw the wages control account. Fourth one production overheads. Fifth one WIP ledger control account. Sixth one we saw the finished goods ledger control account. Now class, one more thing before this, before going ahead, अभी हमारे पास है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, क्योंकि देखो आर ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो वी नीड टू स्टडी अबाउट द, वी नीड टू प्रिपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट एज वेल. अब ये वाला अकाउंट क्यों बनता है. सो दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ऑल योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के खर्चे से. सो अगर आपने कुछ खर्चा किया तो उसको डेबिट करो, और इसका जो भी क्रेडिट दोगे, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का क्रेडिट विल गो इन द फिनिश गुड्स अकाउंट. सो what it represents, अगर क्रेडिट रिप्रेजेंट्स दैट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इज एब्सॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स. What has been done? It is absorbed by the finished goods. और जो भी बैलेंस होगा, the balance will represents the under absorption or the over absorption. आप याद रखो हाँ, जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, जितने भी तीनों ओवरहेड्स है, अब अगर उसमें बैलेंस कुछ आ रहा है, तो दैट बैलेंस विल रिप्रेजेंट्स द अंडर एब्जॉर्प्शन एंड द ओवर एब्जॉर्प्शन. एंड लास्टली, या तो आप उसके लिए ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफर इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझ में आया. तीनों ओवरहेड्स के लिए ये याद रखना, एंड द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. इफ क्रेडिट साइड आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स अंडर एब्जॉर्प्शन, एंड इफ अगर आपका डेबिट साइड पर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो इट विल रिप्रेजेंट्स द ओवर एब्जॉर्प्शन. समझ में आया. नेक्स्ट वन विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सो इट इज डेबिटेड बाय ऑल योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स व्हिच आर इनकर्ड. आप जितने भी इनकर्ड करोगे, जितने के भी, इनकर्ड का मतलब क्या है, पेड. कहीं पर लिख लो, इनकर्ड मींस पेड. सो जितने से भी आपने पे किया होगा डेबिट करो. क्रेडिट कहां पर करोगे, क्रेडिट विल रिप्रेजेंट्स द ओवरहेड्स व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड. तो इस एब्सॉर्ब्ड का मतलब आप इसको कहां पर ट्रांसफर करने वाले हो, यू आर गोइंग टू एब्सॉर्ब दिस, और यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस इन विच अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स.
क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम कहां पर उसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने के बाद मतलब ये ओवरहेड एब्जॉर्ब होने के बाद भी इफ यू आर गेटिंग अ बैलेंसिंग फिगर, एज आई टोल्ड यू, इट विल रिप्रेजेंट्स द अंडर एब्जॉर्प्शन एंड द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स। Under absorption on a credit side, अगर balancing figure is in a credit side, then under absorption. Debit side पर है तो over absorption. And at the last, it will again get transferred in the costing profit and loss account. Are you all getting it? Am I clear? Just acknowledge. समझ में आ रहा है what has been taught? देखो क्लास, हाँ वर्ड्स का ना, वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे, एक तो पे होगा, इनकर्ड का मतलब होता है पेड, दूसरा वर्ड इज चार्ज, चार्ज का मतलब होता है अलोकेट करना, अलोकेशन, अलोकेशन इज ऑल्सो नोन एज चार्ज, यू कैन राइट इट डाउन दिस, अलोकेशन इज ऑल्सो नोन एज चार्ज। एंड एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि वो कहाँ पर रिकवर हो रहा है, एब्जॉर्ब मीन्स वेयर इट इज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। So charge means allocation and absorbs means recovery. Next is cost of sales account. ठीक है, cost of sales account क्या represent करेगा? It shows the total selling and distribution overheads which are recovered. अभी मैंने आपको बताया recovered का मतलब होता है absorbed and which together कि कितना मेरा कॉस्ट है, फिनिश गुड्स जो भी मेरे सेल हुए हैं वो कितना उसका कॉस्ट है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स इन द कॉस्ट ऑफ द सेल्स अकाउंट। एंड क्रेडिट, क्रेडिट किस पर देंगे, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स से हमें जो भी मिलेगा दिस विल बी कॉस्ट, so it will be closed or it will be credited by transferring this amount to the profit costing profit and loss account. So this account is closed by transferring the amount in the costing profit and loss account. Remember this thing. Next one, as I told you, के overhead adjustment account. So this is a summary account. देखो आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में, इफ यू आर गेटिंग एनी ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन और द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स, इवन कभी कभी फिनिश गुड्स या तो WIP पे भी मिलेगा, सो इसका जो भी एडजस्टमेंट्स करेंगे आप इसका एडजस्टमेंट कहां पर करोगे, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में यू आर गोइंग टू एडजस्ट इट। सो अंडर एब्जॉर्ब हुआ तो डेबिट करोगे ये अकाउंट में, ओवर एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स। और ये वाले अकाउंट से फिर जो भी बैलेंस आया वो डायरेक्टली कहां पर ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आई टोल्ड यू द टू थिंग्स, या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जो भी ओवर एब्जॉर्ब या तो अंडर एब्जॉर्ब हुआ है उसको डायरेक्टली या तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लो, या तो आपको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना है तो बीच में आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, ओवरहेड्स एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड दिस विल बी योर सस्पेंस अकाउंट व्हिच विल बी क्रिएटेड फॉर द बैलेंसिंग पर्पस, where you will be balancing your under absorption and the over absorption of the overheads. And the last account is costing profit and loss account. So it is debited, costing profit and loss account will be debited by your cost of sales. अगर कुछ abnormal losses हुए हैं, under absorption कुछ overheads हुए हैं तो it will be debited by that. Credit किसको करोगे, sale of the goods, because हमारी वो सबसे बड़ी इनकम होगी। अगर मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ है या तो मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं या तो ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, देन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और जो भी बैलेंस आएगा ना, जो भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस आएगा दैट विल गेट ट्रांसफर इन द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अभी देखो, पहले आप सारे जितने भी सब्सिडरी लेजर्स है ना वो क्लोज करोगे और लास्ट में आपका प्रिंसिपल लेजर क्लोज होगा। तो लास्ट मतलब देखो मैंने आपको जो फ्लो में अकाउंट्स दिखाए ना वही फ्लो में अकाउंट्स विल गेट क्लोज, and the last account, the second last account which you need to close will be your costing profit and loss account, and the last account which will be closed will be your
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आया? यस क्लास। अब देखो, अब हम जाएंगे, मैंने एक स्लाइड मिस की थी, मैंने पर्पसली आपको वो स्लाइड नहीं बताई, अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब देखो इसका कहाँ पर रिकवर होता है, ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होके कहाँ पर चार्ज होता है। सी, सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल। इन द स्टोर्स, इन द स्टोर्स वी हैव जो भी स्टोर कंट्रोल अकाउंट का जो भी डायरेक्ट पार्ट होगा, वेजेस कंट्रोल का डायरेक्ट पार्ट होगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो भी डायरेक्ट पार्ट होगा, वेर इट विल गो, इट विल गो इन WIP। करेक्ट? मैंने क्या बोला, WIP से अमाउंट विल गेट ट्रांसफर वेर, फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP के बाद क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ओवरहेड्स है वो भी कहाँ पर रिकवर्ड होते हैं, वो भी फिनिश गुड्स में रिकवर्ड होते हैं। फिनिश गुड्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिवली या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सॉर्ब्ड वेर इट इज रिकवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। फिनिश गुड्स से जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वेर इट विल गो इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट के बाद इट विल गो इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, एंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और फिर लास्टली कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बाय दिस हमने आज सिर्फ अकाउंट्स का इंट्रोडक्शंस किए। अब इसकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी आर गोइंग टू डू द जर्नल एंट्री। सी लाइक दिस इट इज एब्सॉर्ब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स WIP में। फ्रॉम WIP इट गोज टू द फिनिश गुड्स, फ्रॉम फिनिश गुड्स COGS, फ्रॉम COGS P&L अकाउंट बनेगा, और administrative will get absorbed in finished goods, and selling and distribution